Hi friends, welcome to Amakshi Excel tutorials. Let's learn and conquer the fear of Excel. Before we start the video, please press the bell icon and share this video with your friends. So in this video, we'll be starting a new topic, that is charts. Now as you can see on your screen, these are the charts present in Excel. Now what is chart and why is it used? Charts are basically used for visual representation of data. It helps us compare our data graphically. So actually it's a very long topic and it will be taking some of the videos, upcoming videos. So now for the first, we'll be starting with chart elements. Now what are chart elements? Chart elements are how you can alter your charts with the help of these elements. Now what are the elements present in the charts? They are as follows: axis, axis titles, chart titles, data labels, data tables, error bars, grid lines, legend and trend line. Now we'll see one by one all of these in Excel. Now in Excel we have taken the sales report and अब हम किस पे ग्राफ प्लॉट करेंगे? हम सेल्स की फिगर्स पे इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे. We'll select the data, go to insert, click on any of the chart. Let's say for example we are just taking column charts, any of the charts. Now what you can see, your chart has been created. Now you can adjust it according to your need, how long, how short you want your chart to be displayed. Now when you click on the chart, you'll see a plus sign here. Now these are your chart elements which helps your chart, which helps you edit your chart. Now the very first thing what you can see here is axis. Axis क्या होता है? Axis is how your data has been bifurcated to represent your data. Means ये आपका स्केल रिप्रेजेंट करता है कि आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस ग्राफ में, इस चार्ट में क्या स्केल, क्या एक्सिस लिया गया है. इफ यू वांट, बाय डिफॉल्ट इट विल बी सिलेक्टेड. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 1 to 49 है एंड 0 to 9000 है जो आपका डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्स का इन लैक्स. अब अगर आपको ये नहीं चाहिए एक्सेस तो यू कैन सिंपली डीसेलेक्ट इट एंड योर एक्सेस विल बी डिलीटेड. अदरवाइज यू कैन जस्ट शो इट लाइक दिस. अब इसमें यू हैव द ऑप्शंस कि आपको कौन से एक्सेस प्रेजेंट करने और कौन से नहीं करने. दैट मीन्स दो एक्सेस है हमारे पास, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एंड प्राइमरी वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल अभी दोनों सिलेक्टेड है. If you do not want the horizontal axis, you can deselect it. If you do not want primary vertical axis, you can just deselect it. Next comes the axis titles. Now axis titles क्या होते हैं? When you select it, what you can see, यहाँ पे आपके axis की naming के लिए आपको एक option मिल जाता है कि you can name your axis. Let's say you know ये क्या represent कर रहा है, आपका data represent कर रहा है 1 to 47 और ये क्या represent कर रहा है, sales. तो if you want, you can just change this as sales. अब यहां भी आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं. You can select whether you want to display the horizontal axis or vertical. अगर आपको horizontal नहीं display कराना है तो you can deselect it. अगर आपको vertical display नहीं कराना है तो you can deselect it. Next comes our chart title. Chart title क्या होता है? Now as you can see here, आपका चार्ट टाइटल बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है. चार्ट टाइटल होता क्या है कि आप अपने चार्ट पर ही एक नेम शो करना चाहते हो कि आपका चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज रिप्रेजेंटिंग सेल्स इन लैक्स. तो ये बाय डिफॉल्ट क्लिक्ड है, सिलेक्टेड है. अगर आपको ये डिस्प्ले नहीं कराना है तो यू कैन सिंपली डीसिलेक्टेड. एज यू कैन सी आपका जो सेल्स जो ये चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो हट गया. इसमें भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं
कि आपको ये कहाँ डिस्प्ले कराना है. You want to display it above the chart, you want to center overlay it, कहाँ आपको अपने चार्ट का डिस्प्ले, चार्ट टाइटल डिस्प्ले कराना है. नेक्स्ट कम्स द डेटा लेबल्स. अब डेटा लेबल्स होता क्या है? यू कैन सी कि आपको ये लाइंस दिख रही हैं, बट ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, कितनी कितनी फिगर्स हैं, कितनी सेल्स हुई हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं. बट यहाँ आपको दिख नहीं रहा है एग्जैक्टली कि क्या फिगर्स हैं. अगर आपको वो एग्जैक्ट फिगर्स देखनी है तो यू कैन जस्ट click on it, data labels, and here it will show the exact figure for every single graph shown, every single line shown. अब डेटा लेबल्स में भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आपको कहाँ डेटा आपका रिप्रेजेंट करना है. सेंटर में रिप्रेजेंट करना है तो वो आपके सेंटर में डिस्प्ले कराएगा. इनसाइड एंड मतलब उस लाइन के अंदर, इनसाइड बेस यहाँ रिप्रेजेंट करना है. आउटसाइड एंड जब आपका कॉलम खत्म हो जाता है उसके बाद डेटा कॉल आउट इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है. तो वॉट एवर वे यू विश टू हैव यू कैन जस्ट हैव इट. अब लेट्स से क्योंकि आपका चार्ट बहुत क्लमजी हो गया है ये सारा डिस्प्ले कराकर, तो व्हाट डू यू वांट कि आपको ये लेबल्स यहाँ नहीं रिप्रेजेंट करने हैं, बट एट द सेम टाइम यू वांट द फिगर्स टू बी शोन. तो एक ऑप्शन आपके पास क्या आता है कि आप यहाँ से ये मत शो करो बल्कि डेटा टेबल शो कर दो. अब जब आप डेटा टेबल शो करोगे तो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर्स दिख जाएंगे टेबल में. अभी आपको यहाँ पे कम दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये स्केल छोटा है, हमारा जो ग्राफ है वो स्केल्स के हिसाब से छोटा है. व्हेन यू विल एक्सपैंड इट तो आपको दिख जाएगा कि ये धीरे धीरे एग्जैक्ट नंबर शो करेगा. ये हुई डेटा टेबल की बात. नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है एरर बार्स. नाउ एरर बार्स होते क्या है? जब आप एरर बार्स पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसे से एरर लाइंस दिखेंगी. अब एरर बार होता क्या है? एरर बार का सिंपल सा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n. Square root of n means, what do you mean by square root of n? I hope it's visible. Now standard error निकालना है हमें, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए standard deviation, जिस भी डेटा पे हम काम कर रहे हैं उसका, एंड square root of n. n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? कितनी वैल्यूज हमने ली है. We know we have taken the 47 वैल्यूज, तो ये हमारा n 7 हो जाता है. अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन का, विच कम्स आउट टू बी ये STDEV स्टैंडर्ड डेविएशन, और पूरा डेटा सिलेक्ट करके मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया है विच कम्स आउट टू बी दिस. एंड जब हम स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगाते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी समवॉट अराउंड 340. तो जो ये हमें हमारे चार्ट में स्टैंडर्ड एरर शो कर रहा है, दिस इज समवॉट अराउंड 340. ये सेंटर से स्टार्ट होते, जहां पे आपकी वो कॉलम की लाइन एंड हो रही है, वहां से दोनों साइड का एरर दिखाता है, नीचे और ऊपर दोनों की कितना एरर है हमारे पास. नेक्स्ट कम्स द ग्रिड लाइंस. अब ग्रिड लाइंस क्या होता है? ग्रिड लाइंस होता है आपको अपने डेटा में ये अंदर कुछ लाइंस दिख रही हैं. अब आपको कैसी लाइंस अंदर डिस्प्ले करानी है, आपको जो बाइफर्केशन कराना है अपने डेटा का, वो कैसे किन ग्रिड लाइंस के बिहाफ पे शो करना है. ग्रिड लाइंस अगर आपको चाहिए तो आप टिक करो, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं. आपको मेजर हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे सिलेक्टेड है. आपको मेजर वर्टिकल लाइंस चाहिए, यहाँ पे वर्टिकल बाइफर्केशंस हो गए. देन माइनर हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए, तो यहाँ पर और माइनर हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई. मतलब जो आपकी मेजर हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसमें भी उसने बाइफर्केशन करके दिखाया है. एंड मोर ओवर कम्स द माइनर वर्टिकल लाइंस. तो एज यू कैन सी दीज आर ऑल योर ग्रिड लाइंस. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने चार्ट में कैसे और क्या डिस्प्ले कराना है. बाय डिफॉल्ट ये मेजर हॉरिजॉन्टल लाइंस डिस्प्ले कराता है.
नेक्स्ट आता है लेजेंड. नाउ व्हाट इज लेजेंड? लेजेंड क्या होता है? लेजेंड इज व्हाट यू आर रिप्रेजेंटिंग इन योर चार्ट. मतलब आप अब इस चार्ट में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? सेल्स रिप्रेजेंट कर रहे हो इन लैक्स. तो लेजेंड होता है कि वो आपको डिस्प्ले कराते हैं. यहाँ चार्ट टाइटल में ऑल्दो यू कैन सी कि आप क्या डिस्प्ले करा रहे हो, बट अगर यहाँ पर एक से ज्यादा वैल्यूज डिस्प्ले करा रहे होते तो आपको क्लियरली नहीं पता चलता कि आप क्या डिस्प्ले करा रहे हो. वहां पे दैट दिस लेजेंड कम्स इनटू प्ले. यहाँ पे अभी क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा है तो इसलिए ये सिर्फ सिंगल सेल्स लैक्स डिस्प्ले करा रहा है. यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आपको कहाँ ये डिस्प्ले कराना है. राइट में डिस्प्ले कराना है, टॉप में डिस्प्ले कराना है, देन यू हैव लेफ्ट में डिस्प्ले कराना है, देन यू हैव बॉटम. जहां पे भी आपको ये लेजेंड डिस्प्ले कराना है यू कैन चूज अकॉर्डिंगली. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ट्रेंड लाइन. ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन इज इट शोज द मूवमेंट ऑफ योर डेटा, कि आपका जो डेटा है वो कैसे मूव कर रहा है. ये जनरली स्टॉक मार्केट्स या उन सब डेटा में काम आता है. अब ट्रेंड लाइन में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं. लीनियर, एक्सपोनेंशियल, लीनियर फोरकास्ट. लीनियर फोरकास्ट मतलब अब एज यू नो हमारे पास जो वैल्यूज थी वो 47 के अराउंड थी, बट इसने हमारे को दो एक्स्ट्रा वैल्यूज दिखाकर आपको दिखाया है एक लाइन कि हमारा डेटा आगे जाकर कहाँ क्या ट्रेंड बनता है. देन 2 पीरियड मूविंग एवरेज, ये स्टॉक मार्केट में यूज होगा. विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल इन आवर अदर वीडियोस. लास्ट 2 ऑप्शंस आते हैं. अगर आप यहाँ पे देखोगे एक ब्रश साइन होता है. अब ब्रश साइन इज द चार्ट स्टाइल्स. यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किस टाइप का चार्ट या स्टाइल चूज करना चाहते हो. यहाँ पे यू हैव वेरियस ऑप्शंस. If you want to have this kind of a chart, you can just choose it. If you want this kind of a chart, you can choose it accordingly. फिर you have the option to change the colors. अगर आप कोई और colors अपने ग्राफ पे चूज करना चाहते हो तो you can simply do that. एक और ऑप्शन आता है, आपको एक फिल्टर बटन दिखेगा यहाँ पर. अब फिल्टर का क्या ऑप्शन है? अगर आप यहाँ पे चार्ट फिल्टर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपने चार्ट में क्या वैल्यूज डिस्प्ले करानी है यू हैव द ऑप्शन टू यू कैन चूज हियर. नाउ लेट्स से हमें ये सारी वैल्यूज 47 की 47 वैल्यूज चूज नहीं करानी है एंड वी जस्ट वांट द फर्स्ट 5 वैल्यूज टू बी शोन. तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट ऑल से हटाया और हमने सिर्फ फर्स्ट 5 वैल्यूज सिलेक्ट करी. क्लिक ऑन अप्लाई. व्हाट यू कैन सी, सिर्फ 5 वैल्यूज हमारे पास डिस्प्ले हुई है, अदरवाइज यहाँ पे सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है. If you like the video, please click on like button and please subscribe for more videos.